Hello everybody, this is Muzaffar Ali. As it is said in English that gratitude is the right attitude, and it is also said that gratitude is the best attitude. So I am really thankful to all of you that you have appreciated my effort and you are, appreciating my effort and commenting on my videos. And I really feel it important to tell you again that my all videos are available on YouTube. The name of the channel is Muzaffar Kolachi Online. Okay, let's start the fourth regular session. Here I want to add that I make 1 minute solution videos of all the problems related to English. Watch that these videos are additional. Okay, and regular lectures are, I'll conduct all regular lectures as per schedule. So today we are going to talk about what is clause, because last time we talked about what is sentence, what is predicate, what is simple sentence, what is simple predicate, what is compound predicate, and all that. Now the next topic that we are going to start is clause. Okay, and apart from clause we'll discuss other topics too, like different structures of sentences. Most of the people have confusion what is difference between simple and compound sentence, and what is difference between compound and complex sentence, and what is difference between complex and compound and complex sentence. So we'll discuss all these things today in this session. And I'll use Urdu also, because most of people have texted me, sir, please uh, make good use of code switching. So I'll switch my code as well. So I'll use Urdu and English both together. So आई एम नाउ गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई शेयर स्क्रीन. ओके, एंड let me minimize it for a while. So this is lecture 4. I hope it is visible to all of you. Okay, the main topic that we are going to discuss is class. Okay, I think there is some music, somebody has added music. The next slide that, okay, लेट्स स्टार्ट विथ क्लास. व्हाट इज क्लास? क्लास होता क्या है पहले आप ये समझ लें. देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लास. क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. क्लास वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो. ओके, अब ये तो सेंटेंस में भी होता है. सो इट साउंड्स ऑफन लाइक अ सेंटेंस बिकॉज द सेंटेंस आल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट देयर इज सम डिफरेंस. दैट डिफरेंस विल कम ऑब्वियस आफ्टर सम टाइम. मैं आपको बाद में क्लियरिफाई करता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है. पर एट द मोमेंट आप ये समझें कि क्लास है क्या. क्लास वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो. ठीक हो गया. अब क्योंकि क्लासेस की डिफरेंट काइंड्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है. ठीक हो गया. तो कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो सेंटेंस की तरह होती हैं और कुछ ऐसी होती है जो सेंटेंस की तरह नहीं होती. Okay, so you can read it over here. There are two kinds of clauses. One is like sentence while other is not. अभी तक क्लियर हो गया क्लास क्या है जिसमें अपना सब्जेक्ट हो और अपना वर्ब हो. Let's discuss kinds of clauses. There are two main kinds of clauses. One is independent clause and other is subordinate clause. What is independent clause? इस अल्फाज से ही नजर आ रहा है independent क्या होता है. जो जिसकी खुद की हैसियत हो, which can stand alone. ठीक है, उसको किसी और जुमले किसी और हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं मैड्रिड इज वन ऑफ द सिटीज ऑफ स्पेन. अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है. इस जुमले को किसी और जुमले की जरूरत नहीं पड़ती. इस जुमले को कंप्लीट करने, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और जुमले के हिस्से की जरूरत नहीं है. इसकी मीनिंग कंप्लीट है. तो एनीथिंग दैट कैन स्टैंड अलोन, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब जब इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया विच कैन स्टैंड अलोन, जो अलोन स्टैंड नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल सब ऑर्डिनेट क्लॉज. यू कैन रीड दिस डेफिनेशन. It can't stand alone as a sentence because it does not express a complete thought. ये खुद से ये खुद से स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये आप अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती, मतलब वो कंप्लीट थॉट नहीं होती, तो इसलिए वो सबऑर्डिनेट होता है. और जो इंडिपेंडेंट मैंने पहले समझाया उसकी क्या होती है, उसमें कंप्लीट थॉट होती है. ठीक है, उसके जुमले की मीनिंग क्लियर होती है. बट सबऑर्डिनेट क्लास में क्या होता है, उस जुमले की मीनिंग क्लियर नहीं होती. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. ठीक है, नीचे आप आफ्टर रीडिंग फ्यू एग्जांपल्स यू विल लर्न इट प्रॉपर्ली. सी,
यूजुअली सबऑर्डिनेट क्लॉजेस स्टार्ट विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे कि बिकॉज लगाएंगे। कुछ ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, इसको पहचानने की एक ट्रिक भी होती है, वो ये होती है कि उसमें कंजक्शन पहले लगा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहले लगा होता है। जैसे उस जुमले के स्टार्ट में लगा होगा बिकॉज, बिकॉज यू कैन से सिंस, ऑल्दो, अनटिल, व्हेन, आफ्टर, इफ, इस तरह के जुमले लगे होते हैं। इसका मैं आपको थीम समझाता हूँ। थीम है क्या? असल में जब सबऑर्डिनेट क्लास आप पढ़ेंगे ना, इट विल हैंग, इट विल यू नो हैंग यू समवेयर, यू थिंक दैट देयर मस्ट बी सम कंक्लूजन। आपको ऐसा लगेगा कि जुमला पूरा नहीं है, अभी इस जुमले को, इसकी मीनिंग पूरी करने के लिए कुछ और चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये जुमला देखें, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिकॉज यूरोपा हैज ओशंस फिल्ड विथ वाटर लाइक द अर्थ। क्योंकि यूरोपा, ये क्या है यूरोपा? ये इट्स वन ऑफ द मून्स ऑफ जुपिटर। कहता है यूरोपा में, उसके पास यूरोपा में भी ऐसे ओशन है जो पानी के साथ भरे हुए हैं जमीन की तरह। क्योंकि, बिकॉज लगा हुआ है क्योंकि। अब इसमें आप देखें, वो जुमला पूरा नहीं हुआ, वो क्या, क्योंकि यूरोपा में भी ऐसे ओशन हैं जिसमें पानी भरा हुआ है जमीन की तरह। अब बात चल रही है, इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। सो इट हैज लेफ्ट लेफ्ट यू समवेयर इन बिटवीन, जहाँ मीनिंग क्लियर नहीं है। तो सबऑर्डिनेट क्लास को आप कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे इस तरह, एक तो उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है, पहली निशानी ये हो गई। दूसरा ये होता है कि उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती, उसका वो कंप्लीट थॉट नहीं होती, बात अभी चल रही होती है, कंप्लीट थॉट नहीं होती, इसलिए वो दैट वी कॉल सबऑर्डिनेट क्लास। ऐसा इंडिपेंडेंट क्लास में नहीं होता। इंडिपेंडेंट में कंप्लीट थॉट होती है, सबऑर्डिनेट में कंप्लीट थॉट नहीं होती, पर दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। नाउ यू सी दैट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? जिसने those who could not watch my previous videos, I made my student understand, सब्जेक्ट होता वो है, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता। सब्जेक्ट वो होता है जुमले में जिसके बारे में बात की गई हो। ठीक है, एनीथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब इस जुमले में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूरोपा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूरोपा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हैज इसका ऑप्शन वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्लास तो है। अब हमने देखना है क्लास कौन सी है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। तो मैंने आपको समझा दिया कि थॉट कंप्लीट हो वो इंडिपेंडेंट होता है, और थॉट अगर कंप्लीट ना हो तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट सबऑर्डिनेट क्लास? इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका रीज़न क्या है? इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो बड़े जुमले होते हैं, काफ़ी लोगों आप काफ़ी बुक्स में देखेंगे, जुमला स्टार्ट होता है और पूरा हाफ पेज तक एक ही जुमला चल रहा होता है, लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, लार्ज सेंटेंसेस होते हैं। तो उनको समझने के लिए आपके पास सबऑर्डिनेटिंग क्लास का की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लासेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लार्जर सेंटेंसेस। तो जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं उसके, ये सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है उसका क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसलिए हमने ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सबऑर्डिनेट क्लास नहीं समझेंगे तो जो लार्जर सेंटेंसेस है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, कंटिन्यूस रन ऑन सेंटेंसेस है, रन ऑन सेंटेंसेस आप नहीं समझ पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें मेन क्लास कौन सा है, सबऑर्डिनेट कौन सा है, आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब मैं आपको, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें समझाऊंगा तो आप फिर क्लियर हो जाएगा। कि एक बात ये समझें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, लाइक इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली स्ट्रक्चर्स। अब जब हम अखबार पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, किसी की राइटिंग पढ़ते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। ना हमें पता होता है ये मेन क्लास है, ना हमें पता होता है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, ना पता होता है ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है। वी आर कंप्लीटली इग्नोरेंट अबाउट दिस थिंग्स। आज के सेशन के बाद आप लोग खुद से गेस कर लेंगे कि यार ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो अभी मैं आपको चार मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाने लगा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें चार ये हैं कि सिंपल सेंटेंस भी हैं, कंपाउंड भी हैं, कम्प्लेक्स भी हैं, और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हैं। हियर आई वांट टू ऐड दैट व्हेन आई अप्लाइड फॉर a foreign country, they asked me this question, you know, what is difference between compound and complex sentences? ये basic difference होता है, पर काफी लोगों को आता नहीं है। उनको ये है बहुत easy, once you understand it you will have grip over it, but for that you should have clear understanding of it। मैं भी आपको समझाता हूँ। see please uh, focus on that slide। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट कंसिस्ट
ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास। अब आपका इंडिपेंडेंट क्लास क्लियर करा दिया पीछे पीछे मैंने। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, तो विच कैन स्टैंड अलोन, विच इज कंप्लीट थॉट। ठीक है, तो इसमें सिंपल सेंटेंस में एक कंप्लीट थॉट होती है, एक पूरा जुमला होता है, जिस जुमले को किसी की जरूरत नहीं होती, उसकी मीनिंग पूरी होती है, उसकी थॉट पूरी होती है। एग्जाम्पल देख लें, लाइफ मे एग्जिस्ट ऑन यूरोपा। ओके, अब ये कंप्लीट मीनिंग है इस जुमले की, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और जिस जुमले में एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, फर्क समझ लें। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। रीड दिस डेफिनेशन, it contains two or more independent classes joined either, that is either, actually the actual pronunciation is either, like most of us including me, we most of the time pronounce it wrong, we say either. That is wrong pronunciation. Correct pronunciation is either. So it contains two or more independent clauses joined either by a comma and a coordinated conjunction or by semicolon. मैं समझा देता हूँ। इसमें दो, कम से कम दो तो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, इससे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब वो जो दो हैं, एक अलग जुमला है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास की तो पूरी मीनिंग होती है ना, वो अलग जुमला है, वो अलग जुमला, उनको मिलाना है। मिलाने के लिए आपके पास दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप बीच में कामा डाल देते हैं, या बीच में सेमी कॉलन डाल देते हैं, या उसमें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस डाल देते हैं। मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये जुमला, मैनी एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ बट अदर्स डिसएग्री। अच्छा जी, अब इसमें आपने ढूंढना है कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है। इसमें सबऑर्डिनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब तो ढूंढना ही पड़ता है। सी, मैनी एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव इन द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो सब्जेक्ट है, बिलीव इसमें वर्ब है, तो मैनी एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बट अदर्स डिसएग्री, ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, जब एक जुमले में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ये दो बहुत सिंपल हैं। और थर्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन आर मोर सब ऑर्डिनेट क्लासेस। इसमें फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास आती है और इसमें फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास आ जाती है, और इसमें एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस भी आ जाती हैं। फर्स्ट में क्या था, एक इंडिपेंडेंट क्लास थी, सेकंड में क्या था, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस थी, थर्ड में क्या था, इसमें एक से ज्यादा, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगी। देख लें एग्जांपल, इफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इज एवर डिस्कवर्ड इट विल चेंज ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक हो गया। अब इसमें दो हिस्से हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने माइंड में ये सोचें, इफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इज एवर डिस्कवर्ड। ठीक, अब ये जुमला कंप्लीट है, इसकी थॉट कंप्लीट है या नहीं है, इसकी थॉट कंप्लीट नहीं है, जुमला कंप्लीट नहीं है, इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। इफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इज एवर डिस्कवर्ड, अभी बात चल रही है, खत्म हो गई, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट हिस्सा सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। दूसरा हिस्सा आप पढ़ें, इट विल चेंज ह्यूमन हिस्ट्री। अब इट विल चेंज ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी बात क्लियर है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक हो गया, तो ये आपने समझ लिया कि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। ठीक हो गया, मैं रिव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट में क्या था, एक इंडिपेंडेंट क्लास था सिंपल में। कंपाउंड में क्या था, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस थे या उससे ज्यादा। थर्ड में क्या था, फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास और दो सबऑर्डिनेट क्लास, एक हो दो हो जितनी भी हो, फिर इसको बोलते हैं हम कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये अब बात समझ लें, सबऑर्डिनेट क्लास का जिक्र सिर्फ इसमें आया है, पहले दोनों में नहीं था। पहले में तो दोनों, एक में एक फर्स्ट में सिंपल में इंडिपेंडेंट क्लास एक थी, और सेकंड में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस थी, और ये थर्ड जो कम्प्लेक्स है इसमें सबऑर्डिनेट का जिक्र भी आया है, कि इसमें यू कैन सी दैट देयर इज वन independent class and one or more subordinate classes, and now let's move towards compound complex sentences। मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, गौर से सुने। कितने काइंड्स हैं, चार, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट।
इसमें आप टेक्निक याद करें, 1 2 1 2, ओके, 1 independent class, 2 independent classes, 1 independent class, again 2 independent classes. अब इसको आप थोड़ा सा गौर से बाद में स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा, देन इट विल बी क्वाइट क्लियर कि सर ने क्या बात कही थी। ठीक है, अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, इट कंटेन्स 2 or more independent classes and 1 or more subordinate classes. तो इसमें कम से कम जो है 3 इसके हिस्से होंगे, कम से कम मिनिमम, क्योंकि 2 तो आपकी इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी होंगी ही होंगी, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकती है, और एक या उससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लास होगी। तो जुमले के 3 हिस्से होने चाहिए। इट मीन्स इट शुड हैव एटलीस्ट 3 क्लासेस। कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग सेंटेंसेस मोस्टली फॉल इन दिस कैटेगरी। आप ये समझ लें कि जो मुश्किल जुमले होते हैं और जो लेंदी सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। ये आप एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल, इसको बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, proper pronunciation is example. Okay, although no sign of life on other world has yet been found, the search continues and many predict success. अब इसमें आपने ढूंढना है इंडिपेंडेंट कौन से हैं और डिपेंडेंट कौन से हैं। मैं फर्स्ट जुमला पढ़ता हूँ, आप प्रिडिक्ट करें फॉर कि ये सही है कि गलत है। although no sign of life on other world has yet been found, बताएं ये इसकी मीनिंग क्लियर है? Although no sign of life on other world has yet been found, okay, answer me on chat box. इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, तो इसकी मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है। द सर्च कंटिन्यूज, हालांकि जुमला छोटा है पर इसकी मीनिंग कंप्लीट है। द सर्च कंटिन्यूज, तलाश जारी है। जुमला कंप्लीट है, इसकी थॉट कंप्लीट है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड मैनी प्रोडिक्ट सक्सेस, और काफ़ी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये कामयाबी होगी। ये जुमले की मीनिंग भी पूरी है। तो नीचे वाले दोनों जुमले की मीनिंग पूरी है, एंड बोथ हैव कंप्लीट मीनिंग, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लासेस। द फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट क्लासेस, सो इट मींस in this compound and complex sentences there are two independent classes and one is subordinate class. Okay, now see that next slides, it's a review, okay, of all that whatever we have covered so far. I am trying to make it short because if there are long videos nobody watches at YouTube. I try to make, I'm trying to squeeze it up. A review, whatever we have, what we have covered so far, that is class. So class का आपने समझ लिया, क्लास क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। आपने फिर हमने क्या पढ़ा, ये डिपेंडेंट मैंने लिख दिया, ये थोड़ी गलती हो गई है, दैट इज एक्चुअली इट्स अ टाइपो मिस्टेक, इट्स इंडिपेंडेंट। फिर हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है विच कैन स्टैंड अलोन। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? विच कैन नॉट स्टैंड अलोन। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़े, उसमें हमने 4 स्ट्रक्चर्स के टाइप पढ़े, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल वो होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, कंपाउंड वो होते हैं जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लासेस हो सकते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये ब्रीफ आपको मैंने ब्रीफली बता दिया है कि क्लास क्या होता है और ये सारी चीज़ें बता दी हैं। नाउ I'll assign you some work, not here, I'll assign you some work in online group. You have to complete that task and you have to, once you are done, please send it in person on my WhatsApp group, on my WhatsApp personal number. Okay, and please ask other fellows to subscribe that channel because I want my voice to reach at as many people as possible, because it's a charitable work. Thank you for being patient listeners, and I'll see you again next time, hopefully. Allah Hafiz.